घंटी बजाओ शो आज अपने मकसद में कामयाब हुआ। 3 दिन लगातार एबीपी न्यूज ने घंटी बजाओ शो में निजी स्कूलों की संगठित लूट और वसूली एजेंट बन गए प्राइवेट स्कूलों की घंटी बजाई तो देश का दर्शक जाग गया। 8080740000 जिस नंबर पर आप घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाते हैं, जिस नंबर पर आप खुद से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, उसी नंबर 8080740000 पर पंजाब के एक शहर से छोटी बच्ची का वीडियो आया। इस वीडियो में जो बच्ची दिख रही है, हमने उसका चेहरा छिपा दिया है ताकि इस बच्ची को भविष्य में कोई समस्या ना हो। इस वीडियो में दिख रहे दूसरे बच्चों का भी चेहरा हमने छिपाया ताकि प्राइवेट स्कूल इन्हें परेशान ना कर पाएं। इस छोटी बच्ची ने घंटी बजाओ शो के जरिए जो बात आप तक पहुंचानी चाहिए है, उस दर्द को आज सुनिए, क्योंकि ये टीस देश के हर घर के अभिभावक की है। नमस्कार सारा नू, मैं जैसे एक प्राइवेट निजी स्कूल ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਫालतू ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ NCERT ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3rd ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 3000 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਓ ਜੋ ਕਿ CBSE ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ 3000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਫਾਲਤੂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 3rd ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਆਈਆਂ ਜੀ 5000 ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 5000। ਦੇਖੋ 6th ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਂਜੀ 6th ਜੋ ਕਿ 5000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਤੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ 27 ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੇਰੀਆਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ प्लीज। यानी देश में किताब घोटाला हो रहा है। CBSE की मान्यता वाले निजी स्कूल NCERT की सस्ती और प्रतिष्ठित किताबों को छोड़कर प्राइवेट पब्लिशर की महंगी और घटिया किताबों को खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने तय किया कि किताब घोटाले से बेखबर सरकार की घंटी बजानी होगी। राजेश, आज देश की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में केरल से CPM के सांसद के रागेश ने देश के हर अभिभावक से जुड़ा मुद्दा उठाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पूरी मोदी सरकार से पूछा, क्यों किताबों के नाम पर देश में निजी स्कूल लूट मचाए हुए हैं। It was decided that the NCERT textbooks are going to be implemented, make mandatory in all CBSE schools. But sir, unfortunately, irrespective of the decision taken by the HRD ministry, most of the private schools, the CBSE schools, they are not implementing the decision taken by the HRD ministry. They are finding a way out, trying to find out a way out, not to implement the decision. Sir, the majority of the private schools, they are compelling students and parents to purchase books from certain private publishers. And what they are doing, sir, they are charging more than 300 to 600, sometimes it is more than 1,100 than the prices that is being charged for NCERT textbooks. Sir, it is a kind of loot. It is being clarified
by the Supreme Court itself time and again that imparting education is not a trade, occupation or business under Article 19(1)(g) of our Constitution. But unfortunately, many of the private schools, they are using education as a tool to loot students. They are imparting education as a business, as a trade, and that needs to be curbed. And one of the important thing that they are using for making profit is making certain unholy alliance with the private publishers and asking the students to purchase books from those particular publishers. जब देश में शिक्षा की पूरी व्यवस्था संभालने वाले मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जवाब देने को खड़े हुए तो पता चला कि अब तक कैसे स्कूल किताब घोटाला करते रहे और सरकार बेखबर बनी रही। सीबीएसई स्कूल्स के, और मुझे जब मैंने मंत्रालय का पदभार संभाला तो पहली ही मीटिंग में पत्रकारों ने सभी ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा कीमत की किताबें, यानी 900 रुपये अगर एनसीईआरटी का टोटल सेट का कीमत है तो 9,000 रुपये भी लगते, 6,000 रुपये भी लगते। सो दैट वाज देयरफॉर हमने इस बार पहले साल था तो वी टुक द स्टॉक ऑफ हाउ मच एनसीईआरटी इज रेडी टू सप्लाई, बिकॉज वो देखना चाहिए, नहीं तो मांग आएगी और कंपलसरी करोगे। एंड वी डिड इट, वी अपील्ड ऑल स्कूल्स टू रजिस्टर एंड गिव देयर इंडेंट, and one good response is 2,000 schools registered and gave their indent, and we have supplied NCERT books in those 2,000 private schools also. Now next year we'll go more further. देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस सेशन से नहीं, अगले सेशन से हालात सुधार लेंगे। इसीलिए यहाँ सवाल उठता है, जब देश में सीबीएसई बोर्ड अगर 1962 से देश में स्कूलों को मान्यता दे रहा है, जब देश में 1962 से एनसीईआरटी स्कूलों की किताब छाप रहा है, जब देश में आज सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 18,370 स्कूल चल रहे हैं, तो क्यों सरकार सिर्फ 2,000 स्कूलों तक ही अभी एनसीईआरटी की किताब पहुंचा पा रही है? क्या देश में एनसीईआरटी की किताबों की किल्लत है? आखिर एनसीईआरटी की किताबों की कमी का फायदा ही तो निजी स्कूल उठाकर अभिभावकों को महंगी किताब खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए आज आपको किताब घोटाले पर बेखबर सरकार की घंटी बजानी है। देश में किताबों का गड़बड़ झाला कैसे फैला है, इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत दिल्ली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली ऋचा से मिले। तो गाजियाबाद में एबीपी न्यूज संवाददाता अपने 2 बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रही अभिभावक डॉक्टर राखी अग्रवाल से मिलते हैं। पहले गाजियाबाद के परिवार की कहानी देखिए। ये बिटिया 9वीं क्लास में पढ़ती है, बेटा आर्यव 5वीं क्लास में है। हमने जब आर्यव की किताबें देखी तो पता चला 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे की 15 किताबों में 8 किताबें प्राइवेट पब्लिशर की हैं, जिनके लिए 1,944 रुपए देने पड़े, जबकि एनसीईआरटी की सिर्फ 7 किताबें इन्हें मिल पाई और इसके लिए महज 355 रुपए देने पड़े, यानी करीब 5 गुना ज्यादा कीमत एनसीईआरटी के मुकाबले प्राइवेट पब्लिशर को देना पड़ रहा है। डॉक्टर राखी अग्रवाल एबीपी न्यूज को बताती हैं, ऐसी महंगी किताबें खरीदने के लिए घर की दूसरी जरूरतों पर कैसे समझौता करना पड़ा है। पेरेंट्स को तो करना ही है। अगर एजुकेशन आज एक जो पहले गुरुकुल में थी, अगर आज वो व्यापार बन गई है तो ये अत्याचार तो ऐसा है कि हमें हंसते हंसते एक्सेप्ट करना ही है। अगर हमारे घर का बजट बिगड़ जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें और मदों पर थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। यानी एनसीईआरटी की किताबें ना मिलने के कारण देश में प्राइवेट पब्लिशर की किताब खरीदने के लिए स्कूल मजबूर कर देते हैं, और ऐसा देश के किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में हमारे संवाददाता रविकांत ने जब सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल की 9वीं की छात्रा ऋचा से बात की तो देखिए क्या सच पता चला। स्कूल बंद होने का समय हो गया है और बच्चे घरों को जा रहे हैं। हमारे साथ ऋचा हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हैं। इनके पास ये बुक है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ की, जो कि इन्होंने एक प्राइवेट प्रकाशक से की ये पुस्तक है। इसका जो दाम है वो 295 रुपये है। आप बताइए कि क्या आप लोग जब ये पुस्तक लेने जाती हैं
तो पहले कोशिश करती हैं कि एनसीईआरटी की मिले? हाँ, हम लोग ट्राई तो यही करते कि एनसीईआरटी मिले, जब नहीं मिलता तो दूसरे पब्लिकेशन की खरीदनी पड़ती है। किस किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं मिलती? फिजिकल एजुकेशन की नहीं मिलती, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों की नहीं मिलती। इन सब की आपने खरीदी है दूसरे प्रकाशक से? सोचिए जब ऐसा दिल्ली में हो रहा है तो देश में कितनी लूट मची होगी। इस पूरे घोटाले पर आपको बताएंगे कि सरकार कैसे बेखबर बनी है। लेकिन पहले समझिए कि आखिर ये किताब घोटाला कितना बड़ा है। एनसीईआरटी की पहली से 8वीं क्लास तक चलने वाली एक भी किताब, जी हाँ, एक भी किताब 50 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं होती। एनसीईआरटी की 12वीं तक चलने वाली सारी किताबों में सबसे महंगी किताब की कीमत 200 रुपए तक ही है, जबकि प्राइवेट पब्लिशर की किताबें 900 रुपए तक की अभिभावकों को खरीदनी पड़ती है। अगर 6ठी से 8वीं क्लास तक की ही बात कर लें तो एनसीईआरटी की जहां सारी किताबों की कीमत 450 रुपए बैठती है, वहीं निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताबें 3500 रुपए तक खरीदवाते हैं। अनुमान है कि एनसीईआरटी के मुकाबले प्राइवेट पब्लिशर की किताब 1000 गुना तक महंगी बेची और खरीदी जाती है। यही वजह है कि कानपुर में ऐसे ही किताब घोटाले के खिलाफ अभिभावकों को प्रदर्शन तक करना पड़ा। यहाँ ज्ञानेंद्र मिश्रा कहते हैं, स्कूलों ने तो दुकान खोल रखी है। स्कूल में दुकानें खोल रखी गई हैं। ये कहा जाता है कि जूते यहाँ से लो, किताबें यहाँ से लो और ड्रेस यहाँ से लो। दुकानें खोल रखी, हर चीज में मनमानी चल रही है। अब सवाल उठने लगा कि अगर ऐसा ही है तो क्या जिम्मेदार एनसीईआरटी नहीं है? क्या वो देश में सीबीएसई के 18,370 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब नहीं छाप पा रहा है? इस बात का सच जानने के लिए हमने एनसीईआरटी में पब्लिकेशन डिवीजन के प्रमुख सिराज अनवर से बात की। इन्होंने पहले जानकारी देते हुए बताया कि देश में पीपीपी मॉडल के आधार पर 78 पब्लिकेशन हाउस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की किताब छापते हैं। सिराज के मुताबिक 2091 स्कूलों ने इस साल एनसीईआरटी से सीधे बात करके किताबें मांगी थी, जिनमें 90% स्कूलों को किताब पहुंचाई गई। लेकिन जब देश में सीबीएसई से मान्यता पाए हुए प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें न मिलने की बात इनसे पूछी तो जवाब क्या मिला, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी का इसमें कोई बस नहीं है। उनको चाहिए कि इसकी शिकायत वो सीबीएसई से करें या मंत्रालय में करें और वहाँ वो बताएं कि ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चलाकर ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को अपनी प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें उनको दे रहे हैं। एनसीईआरटी कहता है कि गलती हमारी नहीं, जो पूछना है सीबीएसई से पूछिए। अब सीबीएसई हो या एनसीईआरटी, दोनों सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार ही आंख बंद करके बैठी हुई है? इस बारे में जब हमने थोड़ी और जानकारी जुटाई तो देखिए क्या पता चला। सरकार ने इसी सेशन में यानी 2017-18 में सीबीएसई के सभी स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें चलाने का फैसला तो ले लिया था। सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि एनसीईआरटी मार्च तक अपने सभी 680 वेंडर्स तक पूरी क्षमता के मुताबिक किताबें पहुंचा दे। 22 फरवरी तक, जी हां 22 फरवरी तक देश के सभी स्कूलों से भी कहा गया था कि वो ऑनलाइन बता दें कि उन्हें कितनी किताबें चाहिए। लेकिन हुआ क्या? देश में 18,370 स्कूलों में से सिर्फ 2091 स्कूलों ने बताया कि उन्हें एनसीईआरटी की कितनी किताब चाहिए। उसमें भी देश के सिर्फ 450 प्राइवेट स्कूल ने महज 4 से 8 किताबें ही एनसीईआरटी से देने को कहा। यानी निजी स्कूल देश में अब भी सरकार के कहे के मुताबिक नहीं चलना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि एनसीईआरटी की कम कीमत वाली किताब बच्चों को पढ़ाई जाए। लेकिन क्यों? इसकी वजह हमने इंद्रप्रस्थ ग्रुप ऑफ स्कूल्स के निदेशक राकेश हसीजा से पूछी। इनकी बात को जरा गौर से सुनिएगा। बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिवनेस से चलना है, आगे कंपटीशन में लेके चलना है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को ट्राई करना है ताकि कंपटीशन में आप विन कर सकें, तो एनसीईआरटी शायद अपने आप को उस लेवल पे नहीं सेट कर सकती। एनसीईआरटी की किताबों पर नानुकुर और प्राइवेट पब्लिशर की किताब के लिए मजबूर करने वाली इसी मनमानी के खिलाफ तो आपको घंटी बजानी है। जब देश में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता लेकर ये स्कूल चलते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल बोर्ड के नियमों को तोड़ महंगी किताब पढ़ाएंगे? देश के सबसे बड़े विद्वान एनसीईआरटी की किताबें तैयार करते हैं।
देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सर्विस के एग्जाम तक के लिए NCERT की किताबों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निजी स्कूल अपनी दूसरी गलत जरूरतों के लिए प्राइवेट पब्लिशर की किताब चलाना चाहते हैं? क्योंकि ये सारा खेल बहुत बड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक CBSE के स्कूलों में स्कूल ड्रेस और किताब का कारोबार ही करीब 10,000 करोड़ रुपए का बैठता है। क्या निजी स्कूलों को डर है कि NCERT की किताबें चलने से उनके 10,000 करोड़ के कारोबार को चोट पहुंच जाएगी? प्रकाशक और स्कूल इस लूट में मौसेरे भाई हैं। उनके गोरख धंधे के सच पर मुहर लगाई NCERT के पूर्व निदेशक JS राजपूत ने, जब उनसे बात करने के लिए ABP न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है देश में, जो प्राइवेट स्कूलों ने चला रखा है कि वे प्राइवेट चीज़ें लेते हैं। कि इस समय लोग प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ। ये तमाशा नहीं होना चाहिए। इस देश में किताबों का स्तर NCERT के आसपास रहना चाहिए। इसीलिए आज ABP न्यूज एक बार फिर आपके सामने अपनी इस मुहिम में राय रख रहा है, जिसके लिए आपको घंटी बजानी है। देश में निजी स्कूलों की लूट खत्म करने के लिए एक देश, एक शिक्षा, एक फीस का सिस्टम बनना चाहिए। और इस मुहिम के लिए देखिए कैसे जनता भी अपनी आवाज उठा रही है। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है, जलंधर से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि एक देश एक फीस का जो फार्मूला है, जो फंडा है, बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूलों वालों ने जितनी लूट मचा रखी है उसके बारे में सभी जानते हैं, मैं तो क्या सभी जानते हैं, लेकिन इसका मैं भी शिकार हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और होना चाहिए। इसके लिए घंटी क्या है, इनके लिए तो जो चाहो बजा सकें तैयार हैं जी। प्लीज़ बजाइए, हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।